بھائیوں بزرگوں، آج کا میرا عنوان ہے صحابہ اور اہل بیت کس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے بزرگان دین، انسان کو جب اللہ علم سے نوازتا ہے تو دو چیزیں لگ کے اس کے ساتھ آ جاتی ہیں، ایک چیز مشہور ہو جاتی ہے، ایک چیز مشہور نہیں ہوتی ہے۔ ایک چیز جو مشہور ہو جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے سوچنے کا انداز معیاری ہو جاتا ہے، وہ عام انسانوں سے الگ تھلگ زندگی گزارنا شروع کرتا ہے، اور ہر وقت انسانیت کی رہبری اور انسانیت کو آگے لے کر جانا اور انسانیت کو صحیح میسج دینا، یہ اس کی رگ و پا میں بس جاتا ہے۔ ایک چیز جب اللہ علم سے نوازتا ہے، چونکہ علم آتا ہی ہے علیم سے، اور علیم ہے ہی خود ذات اعلیٰ یعنی اللہ رب العزت، تو اسی لیے علم جو ہے، ساری چیزیں جو دنیا میں حاصل کر رہے ہیں اس کو علم نہیں کہتے ہیں۔ علم صرف قرآن حدیث کے علم کو علم کہا جاتا ہے، جو کہ اخروی علم سے تعلق رکھتا ہے۔ باقی کے جتنی چیزیں یہ فنون ہیں، فن حاصل کیا جا رہا ہے۔ محترم سامعین، بات دراصل یہاں پر یہ ہے، جو اللہ علم دیتا ہے، ایک تو چیز یہ ہو جاتی ہے، دوسری جو چیز ہوتی ہے علم کی، جو مشہور نہیں ہوتی ہے، مگر مشہور نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز دکھ کے نہیں آتی ہے۔ اب دیکھیے آپ، بعض لوگ زبان سے تو نہیں بولتے مگر ان کا چہرہ بتاتے رہتا انہوں کیا بولنا چاہ رہے ہیں، یہ مزاج رہتا لوگوں کا۔ اب کسی سے کوئی سوال کیجئے کسی اچھی رائے میں، اگر وہ اپنی زبان استعمال نہیں کرے تو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ اس رائے سے ابھی اتفاق نہیں رکھتے ہیں۔ ایک سٹائل یہ ہے، بعض لوگ یہ حد کو پار کر کر کیا کر دیتے ہیں، اپنے جو علم اللہ نے دیا ہے، اللہ کے فضل سے جو علم آیا ہوا ہے، اس علم کے اندر اپنا ایک طرح کا کیا کہتے ہیں وہ دماغ پیش کرتے ہیں، جو دماغ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں تکبر، یا پھر اسی کو کہتے ہیں اپنی منمانی چلانا، اسی کو کہتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے فضل میں اپنا ایک دخل کر کے اپنے آپ کی عزت کو کم کر دینا۔ یہ ایک چیز ہے۔ میں آپ کو آج کے عنوان میں صرف دو باتیں بتاؤں گا، بہت مختصر عنوان ہے آج کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے اہل بیت یہ نوح علیہ السلام کی اس کشتی کے مانند ہے، جس کشتی کے اندر سارے لوگ جو اللہ نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ ان کو کشتی میں لے کر سوار ہو جاؤ، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور میرے صحابہ، چونکہ اللہ کے نبی کے دو رشتے ہیں، ایک اہل بیت کا رشتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک صحابیت جو اللہ کے نبی کے اہل بیت سے جو باہر ہیں یعنی صحابہ ہیں، وہ ایک رشتہ ہے۔ جو صحابہ ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ستارے ہیں۔ ستاروں کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس زمین پر چل رہے ہیں تو آج کا زمانہ تو آپ کو گوگل بتا رہا ہے کہ کدھر جانا ہے، کدھر لیفٹ کدھر رائٹ، وہ بھی کبھی کبھار غلط بتا دیتا۔ راستہ جو سمندری راستہ ہے اس زمانے میں یا پھر اس زمانے میں آج دیکھ لیجئے آپ، سورج جس طرف ہے اس طرف سے آج بھی وہ زیادہ پرانے لوگ جو آج بھی جہاز چلاتے ہیں، ان کا یہی معیار ہے کہ ہم اس سمت چل رہے ہیں، ہمیں اس سمت جانا ہے، ہمیں یہ ادھر کا رخ بدلنا ہے۔ آج بھی ستارے وغیرہ سے ان کو علم کا کچھ نہ کچھ راستہ معلوم ہوتا ہے۔ مگر میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جب یہ بات ڈالی کہ آپ کے صحابہ ستارے کے مانند ہیں، کس کی بھی اقتدا کر لو تم کامیابی کی راہ پا جاؤ گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے، نبی گزر گئے، گزر جانے کے بعد صحابہ کا دور آیا۔ پہلے تو اجل خلفاء، اجل صحابہ کا دور آیا، جس کو خلفاء راشدین کہتے ہیں، 4 صحابہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ 4 صحابہ حق تھے، حق پر اپنی زندگیوں کو گزارا ہے۔ بزرگوں، میں آپ کو یہاں ایک اور بات یہ بتاتا چلتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت تک پورا قرآن کمپلیٹ ہو گیا تھا، 6666 آیتوں کے ساتھ 114 سورتیں اس کے اندر آ گئی تھی۔ ترتیب کا مسئلہ تھا، وہ بعد میں ہو گیا ہے صحابہ کے زمانے میں،
कौन सा सूरा कब रखना है, क्या करना है, सारी चीजें। मकसद यहां पर यह है 114 सूरतों के अंदर अल्लाह ने सहाबा की गिन गिन के तारीफ की है। अलग बात है नाम नहीं लिया है, मगर गिन गिन के तारीफ। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाह, हमने उनका इम्तिहान लिया और उनके इम्तिहान लेने में वो इम्तिहान देने में कामयाब हो गए। उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, और सहाबा के कैसे कैसे इम्तिहानात अल्लाह ने नहीं लिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी इम्तिहान में थे, सहाबा भी सेम इक्वल, वो भी इम्तिहान में ही थे। अल्लाह के नबी ने पेट पे 2 पत्थर बांधे तो सहाबा 1 पत्थर बांध कर आए, इम्तिहान में है। और इसी इम्तिहान के एंडिंग में अल्लाह ने उनका रिजल्ट सुनाया, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। यहां पर ग्रामरी एतबार से अगर आप देखेंगे लैंग्वेज के, अल्लाह है ना उलाइका हुमुल मुफ्लिहून कह रहा है, का मतलब क्या है? अगर एक पर्सन को कामयाब है बोल के बोलना है तो अरबी में आता है मुफ्लिह, कामयाब होने वाला। 2 पर्सन को बताना है तो मुफ्लिहानी कहते हैं। 2 से जायद, मोर देन, यानी मतलब कई लोगों को कामयाब होना बताने को साबित करना है तो अरबी ग्रामर देता है एक लफ्ज वाव और नून, 2 लफ्ज देता है वाव और नून। उसमें क्या होता है? उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सारे के सारे सहाबा कामयाब हैं। और सारे लोग जो आज के जमाने में सहाबा पे उंगलियां उठाते हैं या फिर अली मुआविया के जंगों के दरमियान में अपनी छटाक अकल इस्तेमाल करके बड़े बड़े 2-2 किलो की बातें करते हैं, वो खुद जब कुरान को पढ़ते हैं तो उलाइका हुमुल मुफ्लिहून पढ़ते हैं। वो सब कामयाब थे। भाई वो सब कामयाब कौन थे? वो सब का डायरेक्ट किधर जा रहा है, इशारा किधर जा रहा है, उसका मुशारुन इले कौन है? वो सहाबा तो ही थे। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, कहने का मकसद ये है, आज का जो जमाना है फिलहाल, अभी ये हर साल कोई ना कोई मोमेंट लेके उठ ही जाता है, क्योंकि उनको भी मालूम है वक्त और मौका और इसी तरीके से क्लाइमेट देख के गेम खेलना है। कब कौन से बॉल पे 6 मारेंगे तो कामयाबी है, कब कौन से बॉल पे अपने को खाली टच करना है, कब कौन से बॉल को यूं ही छोड़ देना है। बुजुर्गान दीन, आप देखिए साल के 12 महीने पड़े हुए हैं, मगर मुहर्रम ही में उठते हैं कीड़े। समझ नहीं आता है। मुहर्रम चूंकि अभी नहीं खत्म हुआ, मुहर्रम 22-23 मुहर्रम चल रहा होगा अभी है, अभी जमीन से ऐसे उठते हैं, हालांकि सहाबा के साथ तक नहीं पहुंचने वाली कौम उन्हीं की चीजों को पढ़कर अपनी अकल को रोशन बनाने वाले लोग आज उन्हीं पे भोंक रहे हैं। अल्लाह रहम करे। मैं गुज़िश्ता जुमा आप लोगों को कहा था, उससे पहले वाले जुमा में, मुहर्रम के पहले वाले हफ्ते में, मुआविया के ऊपर लोग अपने अल्फाज कसते हैं। हजरत मुआविया के ऊपर, कौन है मुआविया? कितनी बड़ी शख्सियत है, मैंने आपको गिनाया था। वो तो एक माने में हमारे मामू हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज उम्महातुल मोमिनीन है। उम्महातुल मोमिनीन यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफों के अंदर एक बीवी उम्मे हबीबा जो हजरत मुआविया की बहन है, जो हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साले साहब हुए। तो नबी के साले साहब तो मेरे लिए मामू ही हुए। जब उनकी बहन को उन्होंने नबी को दिया, वालिद, नबी तो हमारे वालिद हैं, उनकी बीवियां जब मां हैं तो ये हमारे वालिद हुए। तो कहने का मकसद ये है, जब तुम्हें अपने मामुओं के ऊपर, जब अपने मामू मोहतरम के ऊपर तुम इल्जाम लगा रहे हो तो कुछ पढ़ लेना तो चाहिए था। ठीक है, तुमने जब पढ़ ही लिया है तो सारे इल्जामात तुमने लगाए हैं, तो अल्लाह खैर करे मेरे भाइयों बुजुर्गों। मकसद यही है कि तुमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियत, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले सहाबा और उनसे सीखे हुए सबकों के ऊपर तुमने इल्जाम लगा दिया। एक लॉजिक समझ लीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से तशरीफ ले गए, पूरा कुरान उतर गया था। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन वाली भी आयत उतर गई थी, अल्लाह उनसे राजी और अल्लाह से राजी, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये भी राजी। आप मानते हैं ना ये बात को कि अल्लाह के नबी दुनिया से जाने के बाद भी कुरान उतर आ गया? हरगिज नहीं। नबी खत्म, जिब्रील बोल दिया आज लास्ट डे है मेरा, बस उसके बाद कभी नहीं आ सकते अब नीचे भाई। तो देखिए आप, जब अल्लाह है ना, आप तारीफ करते अल्लाह की, आज की भी जानने वाला है अल्लाह, कल हुए सो जानने वाला भी है और आगे होने वाली चीजों को भी अल्लाह जानने वाला है। इसी का नाम मेरे और आपका रब है अल्लाह। ये मेरा और आपका अकीदा है।
اگر صحابہ کے اندر ذری بھی مسٹک اگر اللہ دیکھتے یا پھر ہونے والے زمانے کے اندر اللہ کو معلوم ہوتا تو اولئک هم المفلحون بولتے اللہ، ہرگز نہیں بولتے. وہ سب کامیاب ہیں، ان کی اقتدا کر لو کامیاب ہو جاؤ گے. کیوں کہا اللہ نے؟ یہ کہا ہے کہ وہ جو بھی ہیں بس. دو بھائیوں کے درمیان اگر حضرت موسیٰ اور فرعون کی بات لیتے ہیں ہمیں سمجھنے کے طور پر، دیکھو آج میں آپ کو 3 باتیں بولوں گا بڑی جاندار. پہلی بات حضرت موسیٰ اور ہارون. موسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ کیا تھا؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے. وہ اللہ سے بات کرنے کے لیے جب کوئی طور پہ گئے 40 دن کے لیے، اپنے بھائی ہارون کو انہوں نے کیا کیا؟ قوم کا سردار بنایا، کہا کہ تم یہاں رہو، ان کو اچھی بھلی بات کہو، ان کے ساتھ اپنا وقت گزارو، میں جا کے آ رہا ہوں. ٹھیک ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، ریٹن واپس آ رہے ہیں 40 دن کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کی پوری قوم تو تتر بتر پڑی ہوئی ہے. کوئی کدھر چلا گیا، کوئی سامری کی بات میں آ کے کوئی گائے کو معبود بنا دیا، کوئی بچڑا معبود بنا لیا، کبھی کچھ. سب کے سب جو موسیٰ نے محنت کر کے ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا تھا، ہارون کو چھوڑ کر گئے علیہ السلام، سب کے سب تتر بتر، کوئی کدھر، ایک اکیلے اللہ کا نام ہی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب مجھے یہاں یہ بتائیے، موسیٰ آئے، حضرت ہارون کی داڑھی پکڑی اور ایسا سر پکڑ کر کہا کہ اے میرے بھائی تم نے یہ کیا کیا؟ جھگڑا ہوا نا، ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں، ایک ہی باپ کا خون ہے، جھگڑا ہوا آپس میں. آج میرے بھائیوں آپ بتاؤ. پھر اس کے بعد ہارون نے علیہ السلام کہا کہ میرے بھائی آپ تھوڑا سا دھیرج رکھیں، میرے کو آپ گناہ کی طرف مت ڈھکلے، پہلے بات سنیں. جھگڑے ہو رہے ہیں آپس میں، تنازع ہو رہا ہے. جب آپ گئے ہیں تو میں نے بھی ان کے ساتھ رہا، میں نے اپنی زندگی گزاری، سب کیا، میں ان کو اچھی والی بات کہی، مگر آپ کا معیار بڑا پیارا تھا. ان کو کبھی آپ جھڑکتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، تو ان کے جو بھی کام تھے میں نے خاموشی اختیار کی. مگر یہ یاد رکھو کہ میں نے تمہارے میسج کو اپنے تک باقی رکھا ہے ان کو سمجھاتے ہوئے، مگر میں ان کا ساتھ نہیں دیا. میں تو ابھی آپ کے ہی ساتھ ہوں، میں تو ایک اکیلے اللہ کو ماننے والا ہوں. یہ ساری آپس میں جھڑپ ہوئی. اب دیکھیے آپ، وہ زمانہ گزر کے زمانے در زمانے ہوئے. آج کے زمانے میں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں موسیٰ کے ساتھ ہوں تو ہارون کے ساتھ ہے، ایسا کہنے والے کو آپ بیوقوف کہیں گے نہیں کہیں گے؟ وہ آپس کی لڑائی تھی جو چند منٹوں میں ختم ہو گئی. آپ یہ کہیں گے کیا موسیٰ کو جانے کے بعد ہارون کو چاہیے تھا کہ یہ سارے کام کرنا تھا، نہیں کیے، ان کے اوپر گالیاں گلوچ؟ آپ کبھی کسی جگہ سنے ہیں؟ ہرگز نہیں سنے ہیں، اور سنیں گے بھی نہیں آپ یہ بات، اس لیے کہ یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے. میرے بھائیوں بزرگوں، سیم یہی سین آگے آ رہا ہے. اب دیکھیے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، ایسے عتبہ شیبہ کیسے بڑے بڑے سرداران منافقین تھے جو کھلا نبی کو گالیاں دیتے تھے، جو کھلا نبی کو برا بھلا کہتے تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ڈیلی مس یوز لفظ استعمال کیا کرتے تھے. بعضوں نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر برچے سے مار بھی دیا ہے. بعض وہ لوگ ان کے گلوں کے اوپر، ان کے جسم کے اوپر اونٹ کی وجڑی تک رکھ دیے. ایسے لوگوں کا کفر تو واضح ہے نا. یہ لوگوں کو تو کافر بولیں گے ہی نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا اپمان کیا. تو آپ اندازہ لگاؤ آج کی دنیا میں کبھی ان کے اوپر آپ نے جھگڑتے ہوئے دیکھا ہے کہ اس نے اللہ کے نبی کے ساتھ ویسا کیا؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ ان کو برا بھلا کہتے ہوئے کبھی کسی کے منہ سے سنا ہے آپ نے؟ یہ شیعہ حضرات ہی کی بات لیجیے آپ، کبھی ان کو برا بھلا کہتے ہوئے سنا ہے آپ نے؟ ابو جہل کا نام ان کے منہ سے آیا کہ انہوں نے نبی کی شان میں، اہل بیت کی شان میں گستاخی کی ہے، کبھی آپ نے نہیں سنا ان کی زبان سے. بھئی تم صحابہ کے بارے میں کیوں انگلیاں اٹھا رہے ہو؟ تمہیں صحابہ اتنے کتنے چبھنے لگ گئے؟ صحابہ نے تمہارے لیے جو وہ میسج کا کام کیا جو اللہ کے نبی نے ان کو دیا تھا، رہتی دنیا تک کے لیے قرآن پہنچاؤ، جاؤ میری حدیثیں پہنچاؤ اور ساری وہ باتیں پہنچاؤ جو تم نے مجھ سے لی تھی. یہ پہنچانا غلط تھا تو آج تم نے ان کے اوپر گالیوں کی ایک بھوچاڑ لگا دی. ارے گالیاں دینا ہے تو تم ان کو دیتے، ابو جہل کو دو. کبھی آپ کے منہ سے تو ہم نے نہیں سنا. ابو جہل نے نبی کی شان میں بھی گستاخی کی، ابو لہب نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹے جواب دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو تک گالی دے کر چلے گئے. کبھی آپ نے نہیں دیا ان کو گالی. مقصد یہی ہے میرے بھائیوں بزرگوں، صحابہ کے بغض، صحابہ کا بغض دل میں رکھنے والے لوگ عقل جن کی پیدل ہو جاتی ہیں.
मैं आपको एक और बात बता देकर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। सहाबी कहते किसको हैं, सहाबी की तारीफ क्या है, ये आप सुन लो। वहुवा मन लक़ियल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअमिनन बिही व माता अलल इस्लाम। सहाबी उसको कहते हैं नबी को ईमान की हालत में देखें और एंड भी वो सहाबी का नबी के इस्लाम पर ही हो, यानी दीन इस्लाम पर ही वो इस दुनिया से चले जाए। इसको कहते हैं नबी का प्यारा सच्चा सहाबी। हमको सहाबी के बारे में क्या कीदा रखना चाहिए वो यहां क्लियर किया जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो एक भी सहाबी के बारे में तुम बुरा भला कह रहे हो तो थोड़ी देर अपने गिरेबान में झांको, देखो कि तुम सच्चे मोमिन हो कि नहीं हो। ये अल्लाह के नबी ने साफ कर दिया। मेरे भाइयों बुजुर्गों, कुछ भी झगड़े थे होंगे हजरत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के जमाने में, मगर अल्लाह ने उनके बाद उन सारे झगड़ों के बाद कहा है गुफिर लहू, उनको माफ कर दिया गया। रुहमा बैनहुम, आपस में एक दूसरे के लिए रहम किए गए, उनके मामले को छोड़ दो। माइज असलमी एक सहाबी है, और थोड़ा सा जहन खुलने के लिए मैं एक मिसाल देता हूं। माइज असलमी एक सहाबी है जिन्होंने जिना कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहने लगे अल्लाह के नबी मुझे इस दुनिया में आप पाक कर दीजिए, जो जिना का मैटर है मुझे उसका साफ सीधा यहां पर खुलासा कर दीजिए, मैं कल जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे यहां पर क्लियर कर दीजिए। अल्लाह के नबी मुंह फेर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जिना नहीं किए होंगे, आप जाइए। अल्लाह के नबी जिधर मुंह फेर रहे हैं उधर आके ठहर रहे। अल्लाह के नबी मेरी बात मानिए, मैंने जिना किया है। फिर इधर मुंह फेर रहे हैं, नहीं नहीं आप जाइए, ऐसा नहीं हो सकता, छोड़ दीजिए, आपने शायद कोई दूसरा काम किया होगा, इसको जिना कह रहे होंगे। चूंकि साहबा भोले थे, अल्लाह के नबी यही समझा कि जिना नहीं किए बल्कि कह रहे हैं। आप यकीन मानिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, अपना दिफा अगर गुनाह में भी होते सहाबा तो कितना अल्लाह से मोहब्बत, कितनी नबी के तालीमात को उन्होंने दिल में ओढ़ा था, जो आज हम सहाबा को गालियां दे रहे हैं। तुम्हारे अंदर इतना जलवा है, कभी आप कभी मैं हराम का एक लुकमा खा के अल्लाह की बारगाह में आकर ये कहा है अपनी जुबान से? कभी मैं किसी की जमीन हड़प करके आके कभी रात तहज्जुद में हाथ उठाकर कहा है अल्लाह से, ऐ अल्लाह मैं गफूर भाई की जमीन को हड़प किया है? कभी आपने बड़े बड़े बिजनेसों के अंदर घोटाले लाखों के करके कभी ये अल्लाह को कहा है अल्लाह मैंने लाखों का माल उसका डुबा दिया है? ये नहीं कहा है। हम अपनी जुबान पर लाना नहीं चाहते वो अल्फाज, गिरेबान अकेले में बैठ के, दूसरों को तो छोड़ दीजिए आप बोलने का, वो मैटर ही खत्म कर दीजिए आप। सहाबा तो अपने दिल में भी बोले, अल्लाह को भी बोले, नबी को भी आके बोले अल्लाह के नबी मैंने गुनाह किया है। क्या तुम ऐसे प्यारे सहाबाओं के ऊपर भी इल्जाम लगाएंगे? एक शख्स आया अभी है हिंदुस्तान के अंदर लखनऊ का, वो कहता है कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु इस उम्मत के फिरौन हैं। अल्लाह रहम करे मेरे भाइयों बुजुर्गों, क्या कह रहे हो? एक जमाने तक तुम्हारे इल्म के डंके बजे, एक जमाने तक तुम्हें आसमानों पर रखा गया, अहले अरब व अजम तुम्हें अपने सर का ताज समझते थे, तुम ये राफिजियत का रास्ता क्यों इख्तियार कर गए? चलो तुमने ये बात कह दी, जिस अंदाज में भी कहना था, किसी के भी बहकावे में आकर तुमने कह दी, मगर जब अहले हक उलमा तुम्हारे पास आ रहे हैं तो तुम बैठने के लिए राजी क्यों नहीं है? जब तुमने इतना बड़ा जुमला कह दिया तो तुम्हारे पास यह भी तो हक था कि तुम बैठकर इस मसले को हल करते, नहीं हल किया। मसला यानी बिगड़ा, मसला यहां बिगड़ गया कि सारे वो लोग जो 5 वक्त के नमाजी हैं, सहाबा को सरों का ताज मानते हैं, नबी के बाद उनके दर्जे को अहम दर्जा देते हैं, उन लोगों ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की शान में गुस्ताखियां शुरू कर दी है। आपको मालूम है एक सहाबी की शान में गुस्ताखी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की गुस्ताखी है। ये इसको समझ लीजिए। रहीम भाई का बेटा अगर कोई गुनाह करते हुए किसी बशीर भाई ने देख लिया, जब रहीम भाई के बेटे को गुनाह करते हुए बशीर भाई के बेटे ने देख लिया तो वहां पे उस बेटे के ऊपर नहीं आएंगी बात, उस बेटे के बाप पर आएंगे। कैसी तरबियत किया है इस बाप ने, किस तरीके का घटिया लड़का पैदा किया है, ये बात आएगी। हाँ 2 जुमले उसमें भी पढ़ेंगे, मगर जाएगा किधर क्रेडिट? उसके बाप पर जाएगा। तो यहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे सहाबा पूरी उम्मत के वालिद हैं कि सहाबा को इतना भी नहीं समझाया कि अंडरस्टैंड मतलब सोच समझ के अपनी जिंदगी गुजारते, झगड़ों में नहीं पड़ते। तो यहां पर तुम डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहे हो। मेरे भाइयों बुजुर्गों, मैं आपको सच्चे दिल से
अपने छोटे इल्म के मुताबिक कह रहा हूं। आप उलमा की इस जमाने में बात आती है, सहाबा के भी उस जमाने में झगड़े हुए नहीं, बल्कि नहीं, उस जमाने में आपस में मुखालफतें, आपस की जंगें हुई, मगर बाज़े वो सहाबा जो जलीलुल कद्र सहाबी मानते थे, एक कोने में बैठकर ये कहते थे कि दोनों भी हमारे भाई हैं, दोनों भी हक पर हैं। झगड़ा जो हुआ है वो ज़हनी एतबार का झगड़ा है, वो उसको हल होने दो, वो अल्लाह की तरफ का मामला है। अब मसला यहां पर यह है कि हम ऐसे वक्तों पे पता नहीं, अब चूंकि हमारे को हक और ना हक मालूम नहीं है, एक इतना बड़ा बंदा बोल रहा है, सडन उसके पीछे हमारी जिंदगी चल जाती है, गालियां देने के लिए तो हमारे मुसलमान बैठे हुए हैं। अब ऐसा मौका मिल गया तो चलो अब इल्जामात लगाना शुरू कर दे। मेरे भाइयों बचो इससे। अगर आपने 70 साल की इबादत की है, 72वें साल में आपने इस मामले में आकर अगर आपकी जिंदगी अटक गई है तो 70 साल की इबादत चली जाएगी आपकी, याद रख लेना। अल्लाह के नबी का फरमान है, वो छोड़ दो। वो मुआविया अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा के दरमियान में क्या झगड़े हुए, उनके दरमियान के क्या मैटर्स हुए, सबको आपने ये झगड़ों में पड़कर अपनी जिंदगी को खराब नहीं करना है, बल्कि आपके लिए यही हुक्म दिया गया है कि वो हम सबके सरों पे ताज है। एक शख्स आकर कहने लगे, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज या हजरत मुआविया, ये दो चीजें उन्होंने पूछी। उमर बिन अब्दुल अजीज तो ताबई है, यानी मतलब सहाबा के बाद वाले दौर के हैं। उस जमाने के वो शख्सियत ने जवाब दिया था कि उमर बिन अब्दुल अजीज या मुआविया। अब सुनिए, मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस जंग के अंदर जिस घोड़े को लेकर गए, उस जंग के अंदर जो घोड़े के नाक में धूल पहुंची थी, उस घोड़े के एक तरह के बराबर भी नहीं होते हैं उमर बिन अब्दुल अजीज, जिस घोड़े पे हजरत मुआविया बैठे हुए हैं। ये सहाबा का मकाम है, ये सहाबा की अहमियत है, ये सहाबा का दर्जा है। हमारे पास मुहर्रम में एक तरह का तबका, यूं कह लीजिए फिरका गिरोह, जो कि गुमराह फिरका है, उनकी नक्शे कदम पे चलकर, उनकी आह में आह मिलाकर अपने आप को यह समझते हैं लोग कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। अगर आपको पूछ लिया जाए कि उस वक्त के वाकयात सुनाओ तारीख बाई तारीख, तो हमारे पास तो वो लोग 10 दिन के लिए गायब हो जाएंगे। इतना बड़ा उन्वान जो मैंने आज आपके सामने लाया है, बहुत लंबा उन्वान है। अगर मैं यहां से शुरू कर दिया बोलना तो आने वाला साल भी कम पड़ जाएगा कि एक एक जुमा एक एक सहाबी के बारे में अगर जिक्र कर दिया जाए। मेरे भाइयों बुजुर्गों, हमारा इतना ही मकसद है कि हम अपने अल्लाह को राजी करने के लिए नबी के वो सारे अल्फाज को जहन में रखें। एक और हदीस मैं ग्रामर के एतबार से समझाकर अपनी बात खत्म करता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले ग्रामर समझ लीजिए आप। आदिल का लफ्ज आता है अरबी के अंदर इंसाफ करने वाला, रैंडम इंसाफ, बस। एक आता है अरबी ग्रामर में उदूल का मतलब होता है हाई लेवल पर इंसाफ करने वाला, हाई लेवल पर सामने वालों को समझाने वाला, हाई लेवल पर सामने वालों के झगड़ों को सॉल्व करने वाला। मेरे भाइयों बुजुर्गों, अल्लाह ने सहाबा का जब नबी का अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से कहलवाया, जब सहाबा का मर्तबा बयान करने की बारी आई तो क्या कहा, अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, सहाबा आदिल नहीं, इंसाफ करने में इंसाफ की हदों को पार करके इंसाफ करने वाले हैं, ये उसका तर्जुमा है। ये है मेरे प्यारे सहाबा की, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी। अब मेरे और आपका क्या हक है कि हम इन सहाबा के ऊपर उंगलियां उठाएं? अब हमारे तुम्हारे के लिए क्या जरूरी बन जाता है कि हम इन सहाबा के हक में अपनी आवाजों को बुलंद करें? मेरे भाइयों, हम तमाम को इससे बचना चाहिए। और अल्लाह ने कुरान में कहा कि सहाबा सच्चे पक्के मोमिन हैं। वल्लदीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाहि वल्लदीना आमनू व नसरू उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का लहुम मग़फ़िरह व रिज़्क़ुन करीम। मग़फ़िरत पेटेंट है उनकी, उन्होंने जो कुछ किया है। मगर यहां देखिए आप, यहां अल्लाह ये फरमा रहा है कि तुम्हारे लिए कोई हक नहीं है कि तुम उनके ऊपर उंगलियां उठाओ। मेरे भाइयों बुजुर्गों, अगर तुम उंगलियां उठाते हैं तो हम साफ यहां से ऐलान करेंगे, हम अदब से ऐलान करेंगे, हम अपने उलमाए हक के दायरे में रहकर इस बात को उठाएंगे, बोलेंगे। चाहे तुम कितने ही बड़े खानदान से ताल्लुक रखने वाले हो, चाहे तुम्हारा कितना ही बड़ा बैकग्राउंड हो,
चाहे तुमने हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की इमारतों को बुलंद किया हो, चाहे तुम कितने ही बड़े इदारे के एक मौक़र उस्ताद रह चुके हो, चाहो तुम कितने ही उलमा को इस दुनिया में फारिग कर चुके हो, चाहे तुम्हारे अरब और हिंदुस्तान के अंदर इल्म के डंके बजते होंगे, मगर हम आपको आज के बाद से आलिम नहीं मानेंगे, हम आज के बाद से आपको हक पर नहीं मानेंगे, हम आज के बाद से आपको अहले हक का तर्जुमान नहीं मानेंगे। हाँ, हमारी सफों में आप थे, मगर आज के बाद से नहीं है, उस वक्त तक नहीं है जिस वक्त तक आपने तौबा कर कर फिर से हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के हक में बेहतरीन बयान देकर तुम हमारी सफों में ना आ जाएं। ये हम उस आदमी को कह रहे हैं जो आदमी हिंदुस्तान की चोटी का आलिम माना जाता था। आप अंदाजा लगाएं, आम आदमी जिसको इल्म का आइन नहीं है, अगर वो सहाबा के हक में गुस्ताखी करेगा तो हम उसकी बेहतरीन खबर लेंगे। मेरे भाइयों बुजुर्गों, हमें इस बात को समझना चाहिए कि सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को अल्लाह ने क्या दर्जा दिया था। अब बस क्या कहा अल्लाह ने, कुरान में कहा है फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही। लगा सकते इस आयत का तर्जुमा, आप अंदाजा लगाइए। अल्लाह कह रही तुम ईमान लाओ उनके जैसा जैसा सहाबा ने ईमान लाया। ये देखिए आप, सहाबा के बारे में अगर नबी अल्लाह ने कुछ भी अगर इनके बारे में मालूम होता तो इतना बड़ा रेफरेंस नहीं लगाता, इतना बड़ा उनके पीछे टैग नहीं लगाता, रजी अल्लाह अन्हुम नहीं भर देता। यह हैशटैग है सहाबा का रजी अल्लाह ताला अन्हु, यह हैशटैग है सहाबा का फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, यह हैशटैग है सहाबा का उलाइका हुमुल मुहतदून, यह हैशटैग है सहाबा का उलाइका हुमुल मुहतदून। यही वो सहाबा हैं जो नबी के जाने के बाद नबी की पूरी जिंदगी को एक एक हर्फ पर महफूज किया है, एक एक जान की कुर्बानी लगाकर अपनी जिंदगियों को दांव पर लगाकर मेरे और आपके घरों तक ईमान पहुंचाया है। कहां कहां नहीं गए सहाबा, किधर किधर की बाजी लगाकर ईमान के झंडे नहीं गाड़े हैं सहाबा। मेरे भाइयों, आप तो शायद और हम इस मामले में नहीं पढ़ रहे होंगे, मगर मैंने सोचा कि इससे आगाह कराए। सहाबा मेरे और आपके दिलों की जान है। उमर का दर्जा उमर का दर्जा है, अली का दर्जा अली का दर्जा है, अबू बकर का दर्जा अबू बकर का है, उस्मान का दर्जा उस्मान का है रजी अल्लाह ताला अन्हुम, और अशरा मुबश्शरा का दर्जा उनका अलग लेवल का दर्जा है, बिलाल का दर्जा अलग है। हम ये नहीं कहेंगे कि इनका नाम अशरा मुबश्शरा में क्यों नहीं आया, हम अलग से 1.5 ईंट की मस्जिद बनाते हैं ये सहाबी को लेकर, ऐसा नहीं चलेगा। अल्लाह ने हर एक के लिए अलग 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 स्टाइल तैयार करके रखा है। 5 बेटे हैं तो 5 अलग अलग अंदाज में वालिद मोहब्बत करता है। इसका यह मतलब नहीं होता है जीशान से ज्यादा मोहब्बत है, कलीम से कम मोहब्बत है, कलीम की तरफ नजर नहीं है, बल्कि दिल का कलीजा वो भी है, दिल का टुकड़ा ये भी है। मेरे भाइयों बुजुर्गों, हमको चाहिए कि हम एतदाल में रहें, किसी के भी चिकनी चपेटी बातों में आकर अपना माइंड ना खराब करें। सहाबा सहाबा है, बात खत्म। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को तमाम सहाबा किराम की सच्चे मानों में कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए, और सहाबा के बताए हुए तरीकों पर हमको चलने की तौफीक नसीब फरमाए, और सहाबा का दिल से इकराम, दिल से मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।